in this video we will study about modal auxiliaries. Auxiliaries means helping verb. So today we will discuss about modal auxiliaries. A verb used to express the mood, that is mood or attitude of a speaker, is called modal auxiliaries. We have already studied about the verbs, that we have action words are said to be verbs, and some more verb rather than the action verb, that is helping verb. एक्शन वर्ब्स के अलावा भी और वर्ब्स होती हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ऑक्सिलरीज के नाम से भी जानते हैं। और आज हम मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉडल ऑक्सिलरीज वो वर्ब्स होती हैं विच आर यूज टू एक्सप्रेस द एटीट्यूड ऑफ अ स्पीकर। एटीट्यूड ऑफ अ स्पीकर मीन्स स्पीकर के मूड के बारे में जो आपको बतलाए कि स्पीकर किस ढंग से किसी बात को बोल रहा है। मीन्स आइदर द स्पीकर इज रिक्वेस्टिंग और गिविंग कमांड्स, है ना। पास्ट के बारे में बात करा तो ये हमको किसके थ्रू पता चलेंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज के थ्रू। कम टू द एग्जांपल 1, यू शुड रेगुलरली गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। हेयर दिस वर्ड शुड इज द मॉडल ऑक्सिलरी, दैट इज हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको रेगुलरली मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए। यहाँ पे एडवाइस दी जा रही। सो दैट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर shown by the modal auxiliary should. They must attend tomorrow's meeting. यहाँ पे must is the modal auxiliary here which tells you कि आपको कल की मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, आपको करनी पड़ेगी। दैट इज द मस्ट, कंडीशन इज देयर। मे आई यूज योर पेन प्लीज। यहाँ पे परमिशन ली जा रही है कि क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यू कैन पार्क योर कार हेयर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे अपनी कार को पार्क कर सकते हो। तो वर्ड्स कैन, मे, मस्ट, शुड, कुड, माइट, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर सेड टू बी मॉडल ऑक्सिलरीज। द नेक्स्ट वी हैव यू मे टेक माई बुक्स। आप मेरी बुक्स ले सकते हो। दिस इज द मॉडल ऑक्सिलरी है। द नेक्स्ट वी हैव कुड यू ओपन द डोर प्लीज। क्या आप ओपन कर सकते थे डोर। तो कुड इज यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द past tense. Could is the past form of can. Can से could होगा, then may become might, will become would, so shall become should. So these are the past form of these modal verbs. So these are also said to be helping verbs, इनको हम helping verb भी बोलते हैं। There are two types of verbs. First one ordinary and then regular verbs. Next we have auxiliary verbs. Auxiliary verbs are of two kinds, primary auxiliary and modal auxiliary. Primary auxiliary be, do, have. Modal auxiliary verbs may, might, should, must, etc. So here be verbs, that is अगर हम be verbs की बात करते हैं तो be verbs like is, am, are, was, were, will, shall. So these type of words are said to be be verbs, and it depends on the condition of the sentence, given condition of the sentence, that either the sentence is in which tense, sentence किस tense में है। अगर वो present में है then we have to use is, am, are, was, were, we have to use. So these type of verbs are said to be be verbs, जिनको हम be verbs कहते हैं। Then modal auxiliaries क्या कहलाती हैं, may, might, should, must, have. Be verbs, do verb, has verbs. So both are different. ये primary auxiliaries हैं, ये modal auxiliaries हैं। Most commonly used models, जो most commonly used होते हैं model, just like may, might, out, must, would, should, can, could, these type of commonly used models are there. And then some more are there, we will read all. Can, could, may, might, should, would, must, ought to, am, was to, have, had to, used to, need and dare. These are commonly used models. Modal verbs are used to express functions such as. So modal verbs कौन से functions को express करने के लिए use होती है, we will discuss here. First one is permission, ability, obligation, prohibition, lack of necessity, advice, पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना, एडवाइस सलाह देने के लिए, प्रोहिबिशन मीन्स जैसे किसी चीज़ को मना करने के लिए, एबिलिटी काबिलियत योग्यता, परमिशन
परमिशन यानी कि किसी चीज़ को किसी चीज़ अनुमति देने के लिए, अलाउ करने के लिए। ऑब्लिगेशन मीन्स दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी। लैक ऑफ नेसेसिटी, नेसेसिटी यानी ज़रूरत की कमी हो। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना। सो इन ऑल दीज सिचुएशंस द मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड एंड इट परफॉर्म्स डिफरेंटली। हर एक मॉडल वर्ब का अलग फंक्शन होता है और अलग अलग यूज़ होता है। हमको सेंटेंस की नीड के अकॉर्डिंग उसको पुटअप करना रहता है। दे डू नॉट चेंज, मॉडल वर्ब्स डू नॉट चेंज विद द पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। यस, मॉडल वर्ब्स किसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती? पर्सन और नंबर, जो सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, आइदर इट इज़ द सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर और पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। कैन इज़ यूज टू टॉक अबाउट द एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। एबिलिटी यानी कि योग्यता, पॉसिबिलिटी संभावना। तो कैन कब यूज़ होता है? जब हम किसी की योग्यता के बारे में या पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें। एग्जाम्पल, ही कैन प्ले चेस वेरी वेल, सो दैट इज़ द एबिलिटी कि वह चेस बहुत अच्छे से प्ले कर सकता है, बहुत अच्छे ढंग से खेल सकता है। द नेक्स्ट, अनहाइजीनिक फूड कैन डैमेज योर डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज़ पॉसिबिलिटी, संभावना है कि जो अनहाइजीनिक फूड है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर सकता है, डैमेज कर सकता है। देन कैन इज़ ऑल्सो यूज टू आस्क फॉर एंड गिव परमिशन इन एन इनफॉर्मल मैनर। इनफॉर्मल मैनर में पूछने के लिए या परमिशन देने के लिए कैन यूज़ होता है। कैन आई जॉइन द गिटार क्लासेस फ्रॉम टुमारो। तो यहाँ पे परमिशन ली जा रही, फॉर सीकिंग परमिशन की, क्या मैं गिटार क्लासेस कल से ज्वाइन कर सकता हूँ। द नेक्स्ट, यू कैन मीट हिम टुमारो, दैट इज परमिशन इज ग्रांटेड कि आप उससे कल मिल सकते हो। मे इज यूज टू आस्क फॉर परमिशन इन अ फॉर्मल मैनर। फॉर्मल मैनर में परमिशन लेने के लिए मे यूज़ होता है। मीन्स फॉर्मल, जैसे कि हम किसी एल्डर से परमिशन लेते हैं, जस्ट लाइक मे आई कम इन सर, दैट इज सर से कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस अ विश, कोई विश एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक मे गॉड ब्लेस यू बोलते हैं ना, वैसे। मे यू ऑलवेज एन्जॉय गुड लक, मीन्स तुम्हारा हमेशा ही गुड लक एन्जॉय करो, हमेशा ही अच्छा हो तुम्हारे साथ। मे इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट अ वीक पॉसिबिलिटी, वीक पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए होता है। इट में रेन दिस आफ्टरनून, मीन्स शायद कि आज दोपहर को बारिश हो। सो मॉडल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ मेन वर्ब। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मॉडल्स के साथ में मेन वर्ब भी ज़रूरी होती है सेंटेंस में कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस का मीनिंग। एंड इट डज नॉट चेंज विद द पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आपकी मॉडल वर्ब्स चेंज नहीं होती हैं। कुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट। एबिलिटी जो कि पास्ट में बात की जा रही है, उसके लिए कुड यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, आई कुड प्ले 6 आवर्स एज अ यंग मैन, मीन्स कि मैं 6 घंटे तक रेगुलर खेल सकता था। व्हेन आई वॉज यंग, जब वो एज अ यंग मैन खेलता था तो 6 घंटे तक रेगुलर खेल सकता था। ही कुड नॉट लर्न हाउ टू स्विम नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड, मीन्स कि वो क्या नहीं सीख सका, स्विम करना नहीं सीख सका। नो मैटर ये कि मतलब नो मैटर हाउ ही ट्राइड हार्ड, कितना ही उसने मेहनत की है, इट डजेंट मैटर। टू एक्सप्रेस कंडीशनल एबिलिटी, कंडीशनल एबिलिटी भी एक्सप्रेस करने के लिए कोड यूज होता है, जस्ट लाइक आई कुड सिंग बेटर इफ रियली ट्राइड, मीन्स मैं और अच्छा गा सकता था कि अगर मैंने वाकई में कोशिश की होती तो। इफ़ आई हैड विंग्स आई कुड फ्लाई, मीन्स मेरे पास अगर विंग्स होते तो मैं फ्लाई कर सकता था। कुड इज़ यूज टू सीक हेल्प और परमिशन, परमिशन और हेल्प लेने के लिए। कुड यू लेंड मी योर पेंसिल फॉर अ मिनट, कुड वी डांस हेयर प्लीज। कुड इज़ मोर फॉर्मल देन कैन एंड इज़ यूज विद टीचर्स, स्ट्रेंजर्स एंड सो ऑन। तो कुड कैन से ज़्यादा फॉर्मल है, तब हम कुड का यूज़ करते हैं, और इसीलिए ये टीचर्स के साथ में, स्ट्रेंजर्स के साथ में और ऐसे पर्सन जिनको हम नहीं जानते उनके साथ में हम यूज़ करते हैं। मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस परमिशन, परमिशन लेने के लिए भी मे यूज़ करते हैं। सपोज व्हेन वी आर टॉकिंग टू अवर एल्डर्स, एग्जाम्पल, मे आई कम इन, यू मे गो नाउ, आप जा सकते हो।
मे इज मोर फॉर्मल देन कैन, कैन से ज़्यादा फॉर्मल मे होता है। तो कैन हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर जब व्हेन वी टॉक टू अवर क्लासमेट्स फ्रेंड्स, तो हम कैन का यूज़ करेंगे। मे यूज़ करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग टू द टीचर्स, टू अवर एल्डर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, बस पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए भी मे का यूज़ करते हैं। द न्यू मैथ्स टीचर मे कम टूडे, जो नई मैथ्स की टीचर है he or she may will be come today. It is cloudy, it may rain today, बादल हैं तो शायद बारिश होने की संभावना है। So it is used to express possibility. May is also used to express permission. Now next, may is also used to express a wish, hope or prayer. Prayer को express करने के लिए wish और hope तब भी हम may का use करते हैं। मे यू हैव अ ग्रेट ईयर, मे योर विशेज बी ग्रांटेड। जैसे कि हम विश करते हैं ना, कोई भी त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है, किसी के बर्थडेज होते हैं, तो हम मे के थ्रू उसको एक्सप्रेस करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू हैव अ ग्रेट डे, मे यू हैव अ ग्रेट ईयर, जस्ट लाइक दिस। ओके, मे योर विशेज बी ग्रांटेड, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो। द नेक्स्ट, माइट इज़ यूज टू सजेस्ट अ वेरी वीक पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर। फ्यूचर में जो बहुत ही वीक पॉसिबिलिटी होती है उसको यूज़ करने के लिए माइट यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, इट माइट रेन टुडे, आज शायद बारिश हो रात में। डोंट प्ले विद द ब्लेड्स, यू माइट गेट हर्ट, तो ये संभावना है कि शायद ऐसा हो जाए कि आप ब्लेड्स के साथ नहीं खेलो, नहीं तो आपको चोट लग सकती है। Might is used as the past equivalent of may in indirect speech. Might का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम may का यूज़ करते हैं, लेकिन it is equal to may but we use it in indirect speeches. जब हम indirect किसी बात को बोलते हैं तो। Sherlyn said, I may get the opportunity. Sherlyn ने बोला I may get the opportunity. That is the direct speech. Sherlyn said that she might get the opportunity, कि शायद उसको अपॉर्चुनिटी मिले। सो इट इज़ यूज्ड, माइट इज़ यूज्ड इन द इनडायरेक्ट सेंटेंस। देन शैल इज़ यूज्ड टू मेक ऑफर्स और सजेशंस। ऑफर और सजेशंस यूज़ करने के लिए शैल का यूज़ होता है। एग्जाम्पल, शैल आई क्लोज द विंडो, क्या मैं ये विंडो क्लोज कर दूँ? तो ऑफर कर रहे हैं यहाँ पे आप। टू शो सर्टेनिटी और प्रॉमिस, निश्चितता या प्रॉमिस शो करने के लिए भी शैल का यूज़ होता है। आई शैल मेक द फूड टुमारो, मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं कल खाना बनाऊंगा। इन द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस अ कमांड, प्रॉमिस और इवन अ थ्रेट। सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन जब दिया हो तो कमांड को एक्सप्रेस करने के लिए भी शैल का यूज़ होता है, एंड प्रॉमिस और इवन अ थ्रेट, डर भी अगर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल, ही शैल नॉट कम हेयर अगेन, अब वो यहाँ पे दोबारा नहीं आएगा। हेयर यहाँ पे थ्रेट शो किया जा रहा है। यू शैल सर्टेनली रिसीव अ रेज, यहाँ पे प्रॉमिस, यू शैल सर्टेनली रिसीव अ रेज। Then next we have will. It is used to express willingness with the first person, especially in its contracted form I will. Will का कब यूज़ होता है? जब हम मोस्टली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म उसका यूज़ करते हैं, मीन शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि विल को हम आई के साथ लिखेंगे आई विल, वी के साथ विल, ये शॉर्ट फॉर्म शो कर रहे हैं। आई विल सर्टेनली डू इट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए निश्चित ही ये करूँगा। वी विल सेंड यू द इंफॉर्मेशन इन अ वीक्स टाइम, हम आपको इंफॉर्मेशन एक हफ्ते के अंदर भेज देंगे। सो जब हम फर्स्ट पर्सन के साथ में यूज़ करते हैं, आई इज़ ऑल्सो हेयर फर्स्ट पर्सन, वी इज़ ऑल्सो फर्स्ट पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है। टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, स्पेशली विद द फर्स्ट पर्सन, दैट इज आई एंड वी। फॉर एग्जाम्पल, क्या एक्सप्रेस करने के लिए विल यूज़ होता है? डिटर्मिनेशन मीन्स कितने डिटर्मिनेशन के साथ कोई काम कर सकते हैं। प्रोमिसेस हो गया। फर्स्ट पर्सन स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन होता है द स्पीकर, सेकेंड पर्सन टू वूम वी आर टॉकिंग, एंड थर्ड पर्सन अबाउट व्हाट of whom we are talking, that is the third person. So here we will discuss about first person. We will use will. We will complete the homework by tomorrow. तो यहाँ पे promise show हो रहा है, we will complete the work by tomorrow. I will call you as soon as I reach कोची, जब मैं आपको कॉल करूँगा जैसे ही मैं कोची पहुँचूँगा।
Will is also used to express a polite request in a question form. क्वेश्चन फॉर्म में एक polite request के फॉर्म में भी will का यूज़ होता है. Will you join us for lunch? तो यहाँ पे लंच के लिए पूछ रहे हैं, बट इट इज़ अ पोलाइट रिक्वेस्ट. तो क्या आप लंच के लिए हमको ज्वाइन करोगे, हमारे साथ आएंगे? Will you open the door please? It's quite stuffy. तो यहाँ पे डोर को ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही. टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम को भी एक्सप्रेस करने के लिए विल का यूज़ होता है. विल यू मीट मी टुमारो, कल की बात की जा रही है. सो विल यू मीट मी टुमारो, क्या कल आप मुझसे मिल सकते हैं? शी विल बी 14 नेक्स्ट मंथ. यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ वो 14 ईयर्स की हो जाएगी. द सिन्हास विल फर्स्ट गो टू देयर नेटिव प्लेस टू विजिट देयर पेरेंट्स. देन should is used to express advice, suggestion or obligation. Advice, suggestion और obligation means obligations यानी कि दायित्व, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी हम यूज़ करते हैं should का. You should tell the truth, आपको ट्रूथ बताना चाहिए. To express probability, संभावनाएं. You should find this biology book helpful, आपको ये बायोलॉजी की बुक हेल्पफुल लगेगी. Would is used to express a polite request. polite request के लिए यूज़ होता है. Would you mind helping me carry this heavy box? तो क्या आप मुझे ये heavy box को कैरी करने में हेल्प करेंगे? To express a habitual action in the past. Yes, would will का past form है, तो जो habitual action past के लिए यूज़ होता है वहाँ पे भी हम would का यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल, when Alex was a small child, जब वो छोटी बच्चा था, he would eat all the fruits. Now he was very fuzzy, मीन्स वो पूरे फ्रूट्स खा सकता था, अब नहीं खा सकता है वो. टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, संभावना. फॉर एग्जाम्पल, दैट वुड बी द पोस्टमैन, ही नॉर्मली कम्स एट दिस टाइम. पोस्टमैन हो सकता है था क्योंकि वो नॉर्मली इसी समय पे आता है. मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस ओब्लिगेशन. ओब्लिगेशन मीन्स दायित्व. यू मस्ट स्टैंड अप व्हेन द नेशनल एंथम इज प्लेड. आपको खड़े होना चाहिए जब नेशनल एंथम प्ले किया जा रहा था. ये हमारी ड्यूटी है, दायित्व है, कर्तव्य है. टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, ज़रूरत को एक्सप्रेस करने के लिए भी. यू मस्ट टेलीफोन योर फादर इमीजिएटली. आपको अपने फादर को इमीजिएटली मीन्स तुरंत फ़ोन करना चाहिए. टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, द ग्राउंड इज स्लिपरी. ग्राउंड क्या है? स्लिपरी है. इट मस्ट हैव रेन, यहाँ पे मतलब अभी बारिश हुई होगी. नीड इज यूज टू डिनोट नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन. फॉर एग्जाम्पल, माया नीड नॉट गो टू द टेलीफोन बूथ. मीन्स माया को ज़रूरत नहीं है टेलीफोन बूथ के पास जाने की. डू आई नीड टू हेल्प हिम, क्या मैं आप उसकी हेल्प कर सकता हूँ, मुझे ज़रूरत है क्या. आउट टू इज़ यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन. ड्यूटी एक्सप्रेस करने के लिए मीन्स हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य. मॉरल ऑब्लिगेशंस मीन्स जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं आउट टू का. फर्स्ट वन, वी आउट टू ओबे आवर टीचर्स. दैट इज़ द ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है कि हम अपने टीचर्स का कहना माने. वी आउट टू प्रोटेक्ट आवर नेशनल मोन्यूमेंट्स. सो दैट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी. वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर नेशनल मोन्यूमेंट्स. जो भी हमारे नेशनल मोन्यूमेंट्स है उसकी हमें रक्षा करना चाहिए. टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, वी आउट टू बाय अ डबल बेड. तो यहाँ पे ज़रूरत शो हो रहा है कि हमें एक डबल बेड परचेज करने की ज़रूरत है. आउट टू इज़ ऑल्सो यूज्ड टू इंडिकेट समथिंग दैट वाज अ हैबिट, जो कि हैबिट है बट हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड, लेकिन हम उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं. शी यूज टू लर्न रीड एंड राइट. वो क्या करना उसकी हैबिट है कि शी यूज टू लर्न रीड एंड राइट. लर्न करती है और उसको रीड भी करती है और लिखती है. डेयर इज़ यूज इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है व्हेन द इम्प्लीकेशन इज़ टू बी बोल्ड इनफ टू. जो भी इम्प्लीकेशंस हैं मीन्स क्या हम उसमें जो भी इम्प्लाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डेयर यू से सो मीन्स तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की. So in these type of questions, interrogative and sentences, we will use dare.
टू इम्प्लाई अ चैलेंज, किसी को चैलेंज देने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। आई डेयर यू टू फिनिश अप द होल आइसक्रीम मीन्स यहाँ पे चैलेंज किया जा रहा है कि मैं तुमको चैलेंज करता हूँ कि आप ये पूरी आइसक्रीम खा सकते हो कि नहीं। So students, go through these models carefully, read again and learn the rules. Thank you.